السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے، 3 دسمبر 2020 ہے۔ جو سوالات آئے ہوئے ہیں اثر تک ان سب کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا پہلا حصہ عام سوال تھا اور دوسرا حصہ جو تھا وہ تھا کہ میت کے بارے میں یا مردے کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو جو سوالات آئے ہوئے ہیں اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال کیا گیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ میں ایک بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ وعدہ کیا ہوں کہ میں عنقریب ایک ویڈیو باقاعدہ ڈیمو کی شکل میں بنا کر کے آپ کو دینے والا ہوں کہ میت کو کیسے غسل دیا جائے۔ وہ ویڈیو ہوگی، بہرحال آڈیو کی شکل میں آپ کو بات کر لیتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آپ یوٹیوب پر جا کر کے اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ میت کو کیسے غسل دیا جائے۔ بہرحال پھر بھی میں شارٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ جب میت کو غسل کرنے کا ارادہ کیا جائے تو سنت یہ ہے کہ گرم پانی سے غسل دیا جائے اور اس کے اندر بیری کے پتے بھی ڈالے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جس پٹرے پر میت کو لٹانا ہے، ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو دھونی دی جائے تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی خوشبو ہو، کیونکہ میت کے بدن سے ہو سکتا ہے کوئی بدبو کوئی چیز ہو، تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ نہلا رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو۔ تو پٹرے کو خوشبو کی دھونی دی جائے، لوبان کی دی جائے، آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اونٹ کی جو بھی چاہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب میت کو لٹال دیا گیا۔ جب میت کو لٹالا جائے تو اس بات کی کوشش کی جائے کہ میت کے داہنی طرف جو ہے وہ قبلہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایسے لٹالا ہوا ہے تو یہ حصہ ادھر رہے گا تو قبلہ اس کی طرف آئے گا۔ اس کے بعد اس کے کپڑے کو اتارا جائے۔ کپڑا اتارنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، لہذا کپڑے کو کئی پیسے کاٹ کر کے نکال لیا جائے آسانی سے۔ جب کپڑے کو نکالنے کا وقت آوے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر پہلے سے ایک کپڑا ڈالا ہوا ہو، لیکن یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کی نشاندہی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سفید کپڑا ہی ڈال کر کے اس کو غسل دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے، کیونکہ جب پانی پڑتا ہے اور سفید کپڑا ہوتا ہے تو اس کا سطر نظر آتا ہے۔ لہذا اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ڈارک رنگ کا، مرون ہے، کالا ہے، ایسا کوئی ڈارک کپڑا پہلے سے ڈال دیا جائے جو تقریباً ناف سے لے کر کے گھٹنے تک پڑا ہو، اور اس کو زیادہ اگر اتارنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو 2 آدمی کپڑا ایک دم باڈی سے تقریباً 2 سے 4 انچ اوپر کپڑے کو لیے رہیں اور اس کا کپڑا اتار لیا جائے، یعنی پیجامہ کاٹ کر کے ادھر سے اتار لیا جائے، قمیض سرانے سے اتار لی جائے، اور وہ جو کپڑا ہے اس کپڑا پہلے سے بڑا لیا جائے اور اسی کپڑے کو نیچے سے اور ادھر سے لپیٹ کر کے اب اسی کپڑے کو سمجھ لیا جائے کہ اس کو غسل اسی کپڑے میں دے دیا جائے گا، گویا کہ سطر اس کا ڈھکا رہے۔ اس کے بعد اب جب کپڑا اتر گیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کو استنجا کرایا جائے۔ اب استنجا کرانے میں آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھیلے سے استنجا کرایا جائے، یعنی مٹی کے ٹکڑے سے۔ حالانکہ آپ اس کے لیے ٹیشو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کاٹن کے تھوڑے تھوڑے ایسے 3 گولے بنا لیں اور اس کے ذریعے بھی کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو استنجا دلایا جا سکتا ہے۔ استنجا سے مراد جو ہے وہ دونوں استنجا ہے، دونوں مقام جو ہے وہ اس ٹیشو سے صاف کر دیے جائیں۔ اگر ٹیشو نہیں ہے، کاٹن بھی نہیں ہے، تو پھر مٹی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مٹی کا استعمال کرنا لازم ہے ایسا نہیں ہے۔ جب آدمی جس وقت اس کو استنجا دلا رہا ہو پہلے سے وہ اپنے ہاتھوں میں دستانہ باندھ دے۔ اب اس کے لیے دوسری حماقت کیا کی جاتی ہے کہ اسی کفن کے کپڑے کو لا کر کے لوگ باندھتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس جو ہے پلاسٹک کے بنے بنائے ملتے ہیں، 2 خرید دیجئے، ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں، نرس استعمال کرتی ہیں، زیادہ 2-4 روپے کا وہ ملتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں دونوں پہن لیا جائے اور پہننے کے بعد جو ہے اسی کو استعمال کر لیا جائے۔ کفن کے کپڑے سے کوئی دستانہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ جب دستانے آپ کے ہاتھ میں آ گئے، آپ نے استنجا کرا لیا، تو پہلے جو ہے ٹیشو سے یا کاٹن سے یا مٹی کے ڈھیلے سے کرانے کے بعد اس کو 3 مرتبہ پانی سے استنجا کرا دیا جائے۔ پانی سے استنجا کرانے کے بعد اب اس کو وضو کرایا جائے۔ وضو میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے اور منہ میں پانی نہ ڈالا جائے، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عورت ناپاک ہے یا یہ کہ یہ مرد جنبی ہے تو پھر ایسی شکل میں ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے اور کلی کرانا بھی ضروری ہے۔ تو ناک میں پانی ڈالا جائے اور پھر کاٹن لے لیا جائے، اور لینے کے بعد اس کے پانی جو گیا ہوا ہے کاٹن ڈال کر کے پانی کو سک کر لیا جائے، اور اسی طریقے سے کلی میں کرایا جائے اور منہ میں وہ ڈال کر کے کاٹن ڈال کر کے اور پانی کو
सक कर लिया जाए, खींच लिया जाए और फेंक दिया जाए। और अगर पाक है बंदा, यानी जुनबी नहीं है, नापाक नहीं है, तो फिर ऐसी शक्ल में सिर्फ टिश्यू पेपर या कॉटन को भिगो करके उसके मसोड़ों को, दांत को जो है मल दिया जाए और क्या कहते हैं नाक में हल्का सा जो है पानी रख दिया जाए। अब वضو पूरा कराया जाए। जिस तरीके से वضو कराया जाता है, तो हाथ धुलने की जरूरत नहीं है, पूरा हाथ एक मरतबा धुल दें, कोहनी समेत धुल दें, चेहरा धुल दें, चेहरा धुलने के बाद 3-3 मरतबा धुल दें, सुन्नत तरीके से वضو करा दें। उसके बाद मसा कर दें और मसा कराने के बाद जो है वो पैर उसका धुल दिया जाए, वضو इसका मुकम्मल हो गया। बाद लोगों का कहना है, वो भी लॉजिकली बात है, कि वضو कराने से पहले अभी वضू जैसे आपने इस्तिंजा कराया तो बॉडी को थोड़ा से हल्का करें और उसके पैर को, पेट को हल्का सा मलें। बाद लोगों ने ये काम वضू कराने के बाद कहा है, बाद लोगों ने गुस्ल कराने के बाद कहा है। बहरहाल मंतिकी तौर पर बात समझ में आती है कि नहीं, ये काम जो है ना वो इस्तिंजा कराने के बाद करा दिया जाए। अगर कोई गंदगी निकलती है तो उसको धुल दिया जाए और धुलने के बाद फिर वضू कराया जाए। और ये एक मरतबा कराने के बाद दूसरा वضू नहीं है, ये बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है। बहरहाल वضू होने के बाद अब आपको गुस्ल देना, ये मेरी समझ में नहीं आती है बात कि 2-2 घंटा 2.5 घंटा ये गुस्ल दिया जाता है। क्या किया जाता है? गुस्ल में जो फर्ज है वो पूरे बदन का भीगना है। अगर पूरे बदन को, अगर आदमी पाक है, जुनबी नहीं है, हाइजा औरत नहीं है, पूरे बदन को अगर आपने भिगो दिया और भिगोने के बाद पानी के कतरे टपक गए, गुस्ल हो गया मैयत का। ये 2-2 घड़े, 4-4 घड़े, 7-7 घड़े, 10-10 घड़े, 12-12 बाल्टी, 15-15 बाल्टी, 2-2 घंटा गुस्ल। किस चीज का गुस्ल होता है? सब औरतों ने, मर्दों ने अपनी तौर पे जारी कर रखा है। अब वضू हो गया, आप सबसे पहले अब उसको मुल्तानी मिट्टी लाते हैं। वो जिंदगी भर शैम्पू से नहा रहा है, उसको क्या जरूरत है मुल्तानी मिट्टी लगाने की? मुल्तानी मिट्टी जो पानी लगता है उसकी वजह आपको बता रहे हैं। वो मुल्तानी मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। अगर आप एक मरतबा बदन पे लगा देंगे ना, कम से कम 10 मरतबा पानी से धुलेंगे तो मिट्टी छूटेगी, वरना छूटेगी नहीं। वो चिकनी मिट्टी होती है, वो पकड़ लेती बॉडी को है। अब वो मिट्टी लाते हैं, भाई आप साबुन ले आइए, शैम्पू ले आइए, सर के लिए शैम्पू ले आइए, छोटा वाला ले आइए, पाउच ले लीजिए, छोटा सा बट्टी साबुन ले लीजिए, 2 बट्टी ले लीजिए दादा। इसकी सबकी कोई जरूरत नहीं है कि वो कच्चा बर्तन हो तो घड़ा जो है वो कच्चा हो, तो लोटा नया हो। आपके घर के सारे सामान इस्तेमाल हो सकते हैं। जिंदगी भर बेचारा जो इस्तेमाल करता रहा, अब आज आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। उसका खरीदा हुआ सामान है, उसी के लिए बैन लगा दिया गया उठा करके। तो बहरहाल गुस्ल कराया जाए। कैसे कराया जाए? सबसे पहले बेहतर यह है कि सर को धुल दिया जाए, औरत हो या मर्द हो, शैम्पू लगा करके अच्छा सा धुल लिया जाए और या साबुन लगा करके धुल लिया जाए। और धुलने के बाद जो है दाहिनी करवट पे, जब दाहिनी करवट पे सबसे पहले पानी डालेंगे तो वह बाईं करवट पे लेटा हुआ होगा, तो दाहिनी करवट पे पूरा पानी सर से लेकर पैर तक डालें और कोशिश करें कि क्योंकि 2 आदमी कम से कम गुस्ल दे रहे होंगे, 2 आदमी कम से कम उसको उठाए हुए होंगे बॉडी को। तो बॉडी को जब उठाए हुए होंगे और 2 आदमी गुस्ल दे रहे होंगे, तो ऐसा करें कि उसकी पीठ के आखिर तक अपना हाथ डाल करके, और कोशिश करें वो दस्ताना पहने ही रहें। वो जो दस्ताना से आपने इस्तिंजा दिलाया था वो दस्ताना आप चेंज कर लें, अब दूसरा दस्ताना पहन लें। और पहनने के बाद जो है ना उसको रगड़ दें, रगड़ के साफ कर दें। पूरे बदन पे आप साबुन लगाना चाहते हैं, पूरे बदन पे साबुन लगा दें, लेकिन खुदा के वास्ते मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो फिर पानी पर पानी डालते रहना पड़ेगा। मुल्तानी मिट्टी की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पानी हो ये हल्का गर्म हो और इसमें बैर की पत्ती हो, ये सुन्नत तरीका है। उसके बाद जब पहले बाईं तरफ लिटा करके दाहिनी तरफ को धुला जाए, अब दाहिनी तरफ लिटा करके बाईं तरफ को धुला जाए। ये एक मरतबा आपने जब पूरा पानी पैर से सर तक डाल दिया और आपको यकीन हो गया कि पानी पूरे बदन पे लग करके तकातुर हो गया है, कतरे गिर गए हैं, गोया कि गुस्ल इसका कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं तो बाज़ रवायत से मालूम होता है कि काफूर पड़ा हुआ पानी, यानी खुशबू वाला पानी, एक मरतबा वैसे ही सर से पहले जो है वो दाईं तरफ और बाईं तरफ सर से लेकर के डाल दिया जाए, गुस्ल मुकम्मल हो गया। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में गुस्ल कराया जा सकता है। जो कम से कम 2.5 घंटा लेता है गुस्ल कराना, सब सुन्नत के खिलाफ होता है, जिसकी वजह से सारा टाइम लगता है। न तरीका गुस्ल का सुन्नत के मुताबिक है और न क्या कहते हैं जो चीजें आप कर रहे हैं वो सुन्नत के मुताबिक है। गुस्ल इसका क्या हो गया, मुकम्मल हो गया है। अब उसके बाद कफनाने की बात है, वो जिंदगी रही तो फिर कभी बात की जाएगी। बहरहाल इन्होंने बताया था ये कि गुस्ल का तरीका बता दीजिए। पूछा गया मौलाना साहब मैयत के चेहरे देखने का शरई हुक्म क्या है? देखें,
یہ ساری بات सबसे ज्यादा खुराफात आपको मालूम है 2 मौके पर मुसलमान करता है, एक मरने पर और एक शादी होने पर. सबसे ज्यादा खुराफात, सब कोई चीज सुन्नत से साबित नहीं होती. 99% जो कुछ करता गलत करता है. मुझे तो कल साहब ने बताना शुरू किया अपने इलाके के, वहाँ हमारा होश उड़ गया. ऐसी सी बातें कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था. बहरहाल ये जो मैयत को देखने की बात है, अब लोग क्या समझते हैं कि जब नहला दिया गया तो दिखाना लाजिम है. एकदम गलत बात है. कोई आदमी ऐसा है जो तमन्ना कर रहा है कि भैया मुझे दिखला दो, आप उसको दिखला दें. उसी वक्त और 2-4 लोग देखना चाहते हैं. अब बाकायदा चेहरा कुशाई एक पूरा लफ्ज बन गया है. चेहरा कुशाई होगी, सारी पलटन गुजरेगी एक एक करके, और उसमें 20 से 25 मिनट क्या होगा, जनाजा ताखिर किया जाएगा. हालांकि जनाजा को ताखिर करना सुन्नत के खिलाफ है. जितनी जल्दी हो सके जनाजे को क्या होना चाहिए, उठाना चाहिए. लिहाजा आपने जो रस्म अदा की उसकी वजह से 20 से 25 मिनट हो गया. कोई आ गया है, किसी को बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत है, वो कह रहा है भाई साहब मैंने देखा नहीं, मुझे दिखला दी, अब दिखला दो, समझे नहीं. और लोग क्या करते हैं कि जब मरने के बाद भी उसके नाक में और उसके मुंह पे और कान में कॉटन रखे रहते हैं. अच्छा, वो देख करके आदमी की वैसे ही देखकर घबराहट होती है, हालांकि कोई सुन्नत नहीं है. उसको जो जब देखता है वो, तो इसीलिए बहुत से लोग देखते ही नहीं है. आपको मालूम है, अब तैयब जैसे लोग तो जाते ही नहीं, उसके करीब नहीं जाते, डर के मारे नहीं जाते. तो वो जो आपने व्हाइट उसका लगा रखा है, कान में लगा दिया, मुंह में लगा दिया, ये एकदम कोई भी सुन्नत नहीं है. हाँ, अगर कोई ऐसा केस हो गया है कि आपको मालूम है कि पानी निकलने के चांसेस हैं, मतलब डूबा हुआ बंदा है या मर्डर होकर के 2-3 दिन हो गया है, लाश फूल गई है, उसमें आप ऐसा कर दे कि ताकि बाहर से कोई चीज जो है वो निकले नहीं. लेकिन आमतौर पर सबकी बॉडी को तो आपने जो है कॉटन लगाना शुरू कर दिया. तो बहरहाल खुदा के वास्ते ऐसी शक्ल उसकी ना बनावें कि लोग देख करके डरें. बल्कि आप देखें ब्राह्मणों में या लिंगायतों में एक तस्वुर है कि जब उसको लेके जाते हैं तो इतना खूबसूरत बना के ले जाते हैं कि कभी कभी पता भी नहीं चलता मरा है कि नहीं मरा है. यहाँ से तो गुजरता रहता है मदरसे के पास से, वो बैठाल देते हैं बाकायदा तोड़ ताड़ के हैं, और इतना खूबसूरत लगता है, दुल्हन जा रही है, दूल्हा जा रहा है, ऐसी शक्ल अख्तियार करा देते हैं. और तुम अपने वाले को उठा करके तुमने इतना डरावना कर दिया कि जो देखना भी चाहता है वो भी बोलता नहीं भैया बस आप ऐसा करें, बंद करें. लिहाजा ये करना सुन्नत के खिलाफ है, कोई सुन्नत तरीका नहीं है. तो बहरहाल चेहरा अगर देखना है तो दिखला दें, लेकिन ये जो चेहरा दिखाई की रस्म बना ली गई है ये एकदम गलत है. पूछा गया है नमाज जनाजा का पढ़ाने का हकदार कौन है. अगर इस्लामी हुकूमत है तो खलीफा जो है सबसे पहले हकदार है, या खलीफा ने अगर किसी को अपॉइंटमेंट कर रखा है उसका जो नायब है वो हकदार है, और या फिर जिस आदमी के पीछे ये रोज नमाज पढ़ता था वो हकदार है, और उसके बाद फिर उसका वली हकदार है, और अगर वली किसी को इजाजत देता था तो फिर वो हकदार है. बहरहाल ये नमाज ये क्या कहते हैं, किसको नमाज पढ़ाई जाए उसको उसके बारे में पूछा गया. हम मरने के बाद कहाँ रहेंगे, कब्र में या बरज़ख में. कब्र में कोई नहीं रहता, नोट कर लें. सारे लोग जो हैं, और रहने से मुराद रूह है, बॉडी नहीं है. बॉडी भले गड्ढे में पड़ी रहती है, लेकिन असल जो रूह है ना वो चली जाती है किसके पास, अल्लाह के पास, जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है. नेक होती हैं तो उनकी जगह है, सिज्जीन है, बुरी लोगों के है, इल्लीन है, अच्छे लोगों के लिए है. और ये जो कहते हैं कि रूहें आती हैं और 40 दिन तक आती हैं, तो जहाँ नहलाया जाता है वहाँ लोबान लगाते हैं, और जहाँ मरा हुआ होता है कुछ भी नहीं आती, कभी नहीं आती रूह. नोट कर लें, रूह को आने की परमिशन ही नहीं है. अगर नेक रूह है तो इल्लीन इतनी जगह है कि तुम्हारे ये गंदे नालों में आना ही नहीं चाहते दोबारा, कि अल्लाह ताला छुटकारा दिए है, वो गंदे नाले से हम छूट गए, वो तुम्हारे गंदे नाले में दोबारा आना नहीं चाहती. और अगर रूह खराब है यानी अजाब वाली है तो इतना टाइट सिक्योरिटी है कि वहां से वो निकल ही नहीं सकते, निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकते. ये जो आप कहते रहते रूह भटक रही, कुछ भी नहीं, ये सब झूठी बातें हैं. अब वो कभी कभी एक बात और कर देते हैं, क्योंकि जो मुशाहिदा होता है उसको इस तरीके से झूठ कह करके भी मसला नहीं हल होता है. एक मुशाहिदा है, एक आदमी को जिन लग गया, वो बोलता है मैं फलां हूँ, मुझे सुसाइड किया है और फलां है. ये जितनी बातें हैं ना वो आपके अकीदे को खराब करने के लिए वो शैतान होता है जो उसका नाम लेकर के बुलवाता है, ताकि तुम ये अकीदा रखो कि रूहें भटक रही हैं. वरना रूह भटकती नहीं है. रूह जहाँ चली गई, हदीस में क्या आता है कि जब नेक रूह होती है तो जैसे ही रूह निकलती है
फरिश्ते को पावर ही नहीं है रूह को इस दुनिया में रखने का, उसकी दुनिया अलग है। वो रेशमी रुमाल में रूह को रखती है और तेजी से लेकर के भागती है, और अगर बुरा होता है तो बदबूदार होता है और वो लेकर के फरिश्ता भागता है। दोनों फरिश्तों को पावर ही नहीं है कि रूह को यहाँ छोड़ दें। वो तो सिर्फ हमारे जो कहानी किस्से सुनाने वाले उलमा वो बताते रहते हैं कि मुल्कुल मौत को पकड़ लिया और उनकी थैली खोल दिया तो रूहें निकल गई। सब झूठी बातें हैं, क्योंकि झूठी बातों में, अभी कल एक किताब पढ़ रहा था, अजीब व गरीब वाक़या सुनना, बहजतुल असरार एक किताब है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। उसमें लिखा हुआ है कि एक रात में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 मरतबा गुस्ल किया, और फजीलत बयान करना चाह रहा है। सर्दी की रात में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 मरतबा गुस्ल किया। फिर आगे क्या लिखता है कि 40 मरतबा उनको एक रात में एहतलाम हुआ। एक तरफ फजीलत बयान कर रहा है कि मतलब बताना चाहता है कि सर्दी में भी वो नहर पर गए और 40 मरतबा उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल करने की वजह क्या लिखी हुई है? वजह लिखी हुई है कि हजरत को 40 मरतबा एहतलाम हुआ। अरे यहाँ साल भर में तो 40 मरतबा होता नहीं यार, आदमी है या क्या है? फिर लोग भी सोचते हैं कि झूठ बोलना है तो दबा के बोलो यार, थोड़ा मोड़ा झूठ बोलने का क्या फायदा है? उसी किताब में लिखा हुआ है, वो टॉपिक नहीं है, उसी किताब में लिखा हुआ है कि 15 साल तक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक पैर पर इशा से लेकर फजर तक खड़े रहे, और 15 साल तक तो ये खड़े रहे, और 40 साल या 25 साल दोनों रवायतें हैं, हमेशा इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। अच्छा, और उसी में ये भी लिखा है 40 मरतबा इतलाम हुआ। देखिए आप उसी में ये भी लिखा है, और उसी में ये भी लिखा है कि फजर इशा के वजू से, अच्छा अगर इतलाम से वजू मतलब वजू नहीं टूटता है, गुस्ल वाजिब हो जाता है। अजीब वो गरीब बात है। आदमी जब झूठ बोलता ना तो ये नहीं समझ पाता है कि कहाँ से पकड़ा जाएगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वो चोर को पकड़ता है। बहरहाल कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेकर जो झूठ बोला गया, इस पर हम एक सीरियल चलाएंगे कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर लेकर के। कल मैं गया था, जितनी किताबें थी हुबली में सब मैं लेकर आ गया हूँ, बाकायदा खरीद करके लेकर के। हमने कहा आपके पास जितनी हजरत की किताबें फजीलत वाली हैं सब मुझे दे दीजिए। सारी किताबें लेकर आए। मैं इंशाअल्लाह एक एक किताब का नाम लेकर के मंतिकी तौर पर, अक़ली लिहाज से, शरई लिहाज से कहाँ कहाँ गलती हुई है उस पर सब पे बात करेंगे। बहरहाल तो कब्र जो रूह है वो बरज़ख में रहती है। पूछा गया हमारी रूह कहाँ रहेगी? जहाँ सबकी रहेगी वहाँ आपकी भी रहेगी। अब देखिए मुसलमान है, अब मुसलमान भी कद्दू टांगे हुए हैं घर की हिफाजत के लिए। यूपी में नहीं है, यूपी में दूसरी बलाएं हैं। यहाँ पर एक बला है कि हिंदू भी कद्दू टांगे हुए अपने मकान के सामने और गैर मुस्लिम भी, तो कद्दू वाले इकट्ठा रहेंगे। अब जो भी आप अकीदा रख लें, ऐसा थोड़े होगा कि एक गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, गाड़ी बेंगलोर जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैं मुंबई जा रहा हूँ। क्यों मैं मुंबई जा रहा हूँ? मैं अपनी सीट घुमा के बैठा हूँ, लिहाजा मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुम बेंगलोर जा रहे हो। ऐसा नहीं होता भाई, जहाँ गाड़ी जाएगी वहाँ सबको जाना है। सीट के घुमाने से मंजिल नहीं बदलती है। तुमने भी कद्दू टांगा है, उसने भी कद्दू टांगा, तो कद्दू वाले इंशाल्लाह इकट्ठा रहेंगे। समझे नहीं? कद्दू वाले इकट्ठा रहेंगे। पूछा गया क्या इंसान की मौत का दिन, तारीख, जगह मुकर्रर है? एकदम मुकर्रर है, दिन भी मुकर्रर है। बाकायदा हदीस में मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अल्लाह ताला जब नुस्खे को डालता है तो ऐसी शक्ल में सारी चीजें ये जो पूछी गई हैं सब लिख दिया जाता है। जगह, मौत कब आएगी, किस जगह आएगी, सब कुछ लिखा रहता है। पूछा गया है मर्द के लिए कितने गज कपड़े लगते हैं, एक लमसम में बता दीजिए, और औरत के लिए कफन के लिए कितने कपड़े लगते हैं। लमसम की जहां तक बात है, तकरीबन 3 मीटर कपड़ा मर्द को लगना चाहिए। ये एक अलग बात है कि आप 3 कपड़े लगने चाहिए और 10 मीटर कपड़ा लगेगा। 3 कपड़े होना चाहिए। ये जो आप साफा बांधते हैं 5 मीटर का, ये तुम अपनी जेब से बांधते हैं, एकदम गलत है, कोई सुनना। अच्छा, जिंदगी में कभी साफा इन्होंने बांधा नहीं, बांधने का तरीका भी नहीं मालूम है। अब मरने के वक्त इनको साफा बांध दिया गया। औरत के 5 कपड़े हैं, 21 मीटर कपड़ा लगता है तकरीबन। मर्द के 3 कफन है, तकरीबन 10 मीटर कपड़ा लगता है। पूछा गया कब्र की ज़ियारत का सुन्नत तरीका क्या है। सबसे पहली बात याद कर लें, कब्र की ज़ियारत के लिए वक्त का मुतय्यन करना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। बाद हदीस ज़ईफ है जिसमें जुमा का दिन है। बहरहाल कोई अगर
जाता है तो हम उसको इतना शब्दोमत से नहीं कहते हैं, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है। बहरहाल कब्रस्तान जाएं तो सबसे पहले सलाम करें, पढ़ने जाने के बाद दुआएं पढ़ें, और दुआएं पढ़ने के बाद आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता है कि हम बुजुर्गों की कब्र पे जाते हैं तो जाते इसलिए हैं कि उनको विशाल सवाब पहुंचाए। जो हमारी दुआ का मोहताज है वो तुम्हारे मसाइल कैसे हल करेगा? ये बात करी भाई, आप गए किस लिए? कहते भाई फातिहा पढ़ने गए हैं। मतलब ये है कि उसको हम विशाल सवाब पहुंचा। जो हमारा मोहताज है जिंदे का, वो बंदा वो हमारे मसाइल कैसे हल कर देगा? अगर इतना बड़ा पीर करम खान होता तो बोलता जा भाई मैं खुद अपने मसाइल डील कर लूंगा। हमारे मसाइल के लिए, हमारी दुआओं के लिए वो बंदा परेशान है कि आए लोग मेरी दुआ करें। और दुआ तो आपको हैरत होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया कि लोगों मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में फला मुकाम अता फरमाए। आप हमेशा अज़ान में दुआ करते हैं कि आते मोहम्मद अल वसीला, कि अल्लाह ताला, बाद लोग समझते हैं यहाँ ये मुराद है कि मोहम्मद का वसीला दीजिए, हालांकि वहाँ पर मफूल वाक़ हुआ है आती मोहम्मद अल वसीला, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीले वाली जगह दीजिए। और फिर अल्लाह के रसूल से पूछा भैया ये वसीला क्या है? हुजूर ने फरमाया कि जन्नत की एक जगह का नाम है, एक मुकाम है जो सबसे ऊंचा मुकाम है, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। नबी हमसे दुआ क्यों कराया? हम उम्मत से दुआ क्यों कराया? ये बताने के लिए हम खुदा नहीं हैं, वरना हकीकत में उसको हमारी दुआ का मोहताज नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपसे कहलवाया कि ताकि कहें, ताकि लोग न जाने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हैं। हर जगह आपके अकीदे की इस्लाह के लिए अल्लाह के रसूल ने तरकीब अख्तियार की, आप उसके उल्टी तरकीब अख्तियार क्यों? एक अलग मसला है। बहरहाल जो है ज़ियारत का ये तरीका है। पूछा गया कब्र के अंदर मैयत को लेटाने का मसनून तरीका क्या है? कोशिश ये करनी चाहिए कि कब्र के अंदर जो लेटाला जाए तो उसका चेहरा जो है वो क़िबले की तरफ हो। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर एकदम सीधाई मैयत लेटाली गई है जिसको चित आप कहते हैं, अगर ऐसे लेटाली गई है तो क़िबले के मुंह को क्या करें, थोड़ा सा क़िबले की तरफ करके और बाईं तरफ छोटा सा कोई अगर मिट्टी का टुकड़ा लगा देंगे तो खुद बखत चेहरा क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ रुका रह जाएगा। पूछा गया कब्र में उतारते वक्त कौन सी दुआ पढ़ें? बाज़ रवायत में आया है कि बिस्मिल्लाह वाला मिल्लति रसूलुल्लाह ये कहते हुए जो है मैयत को कब्र में उतारना चाहिए। ये सारी चीज़ें वाजिब नहीं हैं, ये नोट कर लें, ये सारी चीज़ें वाजिब नहीं हैं। वाजिब उसको दफनाना है। वाजिब क्या है? दफनाना है। अब आप देखिए आंध्रा का बाज़ इलाका, कर्नाटक के आपके पास छापूर साइड में डायरेक्ट बॉडी के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, एकदम गलत तरीका है। वो उसकी इस्लाह होनी चाहिए, ये सब मसले से पहले उसकी इस्लाह होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हो। और मुझे हैरत हुई कि वहां पर उलमा मौजूद हैं और वो कुछ कह रहे हैं हमारी चलती ही नहीं है। अरे चलती क्या नहीं यार, अपने तुम्हारा आदमी मरा था तो तुमको बताना चाहिए था कि लहद कैसे बनती है, कब्र कैसे बनती है, तुमको बताना चाहिए था। ये आंध्रा के इलाके में और कर्नाटक के बाद इलाके में, तमिलनाडु के बाद इलाके में डायरेक्ट गोया की कब्र नहीं कह सकते आप उसको, ये कहिए कि गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी गई। ये एकदम सुन्नत के खिलाफ है, एकदम नहीं होना चाहिए। पूछा गया तदफीन के बाद इज्तिमाई दुआ या इनफरादी दुआ मसनून है? देखें ये याद रखें कि जब बंदे को दफन कर दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपने फरमाया कि लोगों इनके लिए दुआएं करो। अभी अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे, अभी इनसे सवाल किया जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया। लिहाजा अगर ऐसे मौके पर इज्तिमाई दुआ कोई करता है, इज्तिमाई दुआ कर सकता है। नंबर एक, इनफरादी दुआ करना चाहता है, इनफरादी दुआ कर सकता है। इनफरादी दुआ लंबी करना चाहता है, लंबी कर सकता है। फिर पूछा गया हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए या क्या कहते हैं हाथ उठाना नहीं चाहिए? अगर कब्र की तरफ तुम्हारा मुंह है तो बेहतर ये कि हाथ ना उठाया जाए, और अगर किबले की तरफ तुम्हारा मुंह है, कब्र तुम्हारी पीठ की तरफ है, तो हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि अगर डायरेक्ट आप कब्र की तरफ, मिसाल के तौर पर किबला एक तरफ है, मैयत हमारे आगे है, मैं हाथ उठा करके, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो कि ये इससे मांग रहा है, मैं इसके लिए मांग रहा हूँ, भाई इससे नहीं मांग रहा हूँ, इसके लिए मांग रहा हूँ। लिहाजा वो उस कंफ्यूजन के लिए जो है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू मवाक़िअत तहम, लोगों तोहमत की जगहों से बचो। तोहमत से बचो नहीं कहा गया, तोहमत की जगहों से बचो। लिहाजा इससे एक चांसेस है कंफ्यूज होने के, उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। लिहाजा हाथ ना उठाएं तो बेहतर है। और अगर किबले की तरफ मुंह है और मैयत पीठ की तरफ है तो फिर हाथ उठा करके दुआ मांगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूछा गया कि नमाज जनाजा में हाथ कब छोड़ा जाए?
یعنی جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر کہنے کے بعد انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، تو اس کے بعد ہاتھ چھوڑنا چاہیے یا جیسے ہی السلام علیکم کا ہاتھ؟ دونوں شکل نہ ہاتھ باندھنا واجب ہی نہیں تھے، لہٰذا چھوڑنا بھی واجب نہیں ہے، باندھے ہی رہو۔ اصل چیز دیکھیں، یہ آپ کو بڑی خطرناک بات بتانا چاہتا ہوں، امت کو ایسے مسائل میں الجھایا گیا ہے کہ جو حقیقت میں ہمارا ایشو نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم کو دور کر دیا گیا ہے جو حقیقت میں ہم کو جاننا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، ایک سوال اور بھی پوچھا گیا ابھی جوتا کے بارے میں، انہی صاحب سے پوچھیے کہ جنہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور چھیڑا ہے، ان سے آپ پوچھ لیجیے کہ نماز جنازہ میں فرائض کتنے ہیں؟ جو جاننا ضروری ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہاتھ کب چھوڑا جائے گا اس کی فکر لگی ہوئی ہے، لہذا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جن صاحب نے پوچھا ہو ان کو ضرورت ہو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی رفع الیدین کے بارے میں جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، کوئی بھی رفع الیدین کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ جس نے تم سے سوال کیا اس سے پوچھو کہ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ وہ اس کو نہیں بتا رہا ہے، کیوں؟ اس کا مقصد فتنہ پیدا کرنا ہے۔ رفع الیدین کریں نہ کریں، ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ لکھا ہے نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو تم نے ایشو بنا دیا ہے، اور یہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، وہ نہیں بتاتا، کیوں؟ کیونکہ فتنہ پرور ہے، اس کو اس میٹر کو ایشو بنانا ہے جس کا تعلق تمہاری زندگی سے نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ہاتھ چاہے آپ آگے چھوڑ دیں پیچھے چھوڑنے کو فرق نہیں پڑتا۔ مجھے کہ نماز جنازے میں جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اگر جوتا پاک ہے تو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جوتے کو دیکھ لیں، آپ کو یقین ہو جائے میرا جوتا پاک ہے، جوتا پہنے نماز پڑھ لیں، نمبر 1۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو بہتر ہے جوتا ایک دم اتار دیں۔ دوسری شکل، تیسری شکل یہ ہے کہ جوتے پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر جوتے پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی جوتا ناپاک رہا تو بعض لوگوں کی رائے ہے کہ جوتا آپ سے چمٹا ہوا نہیں ہے، لہذا نماز ہو جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جوتا اگر آپ کا عام جوتا ہے جس میں اتارنے میں زحمت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اتار کے نماز پڑھ جائے، سب سے اچھا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر مرنے والے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ فلاں صاحب پڑھاویں اور قبر میں فلاں صاحب اتریں اور مجھے نہلائیں فلاں صاحب، تو ان کی وصیت کو پورا کرنا شرعی لحاظ سے کرنا۔ مرنے والے کی جو وصیت ہے، اگر وہ وصیت 3 مالی وصیت ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ 1/3 کے اندر ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ بقیہ جتنی وصیت ہے کوئی وصیت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا فلاں سے نماز جنازہ پڑھائی، پتا چلا نمبر 1 کا بدعتی ہے وہ، جس کا نام وہ لے کر کے گئے ہیں، اس کو وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، تو آپ چھوڑیے نہیں پڑھائیے ان سے۔ ہاں اگر آپ اچھا آدمی ہے تو ٹھیک ہے وصیت کو پورا کر دیں، بہرحال وصیت کو پورا کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔